Assalamualaikum, welcome back to BioTalk podcast and I'm Rabia Malik, the host of the podcast and आज हमारे साथ हैं अफ़ीरा वक़ार, डॉक्टर अफ़ीरा वक़ार हेयर जो कि सलीम हबीब में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे काम कर रही हैं। तो आप अपने Thank बारे you very में much, Rabia, for introducing me, and it's a pleasure for me to be here. And इट्स एन ऑनर फॉर अस एज वेल। खैर, आप अपने बारे में बताएं, अपना बैकग्राउंड वगैरह। मेरा background slightly briefly तो आपने बता दिया है. Currently, I am working as an assistant professor in Salim Habib University, and before that, I was working as a lecturer in Zabist as well. Okay. And, Which if- department? In the biosciences. Okay. So yeah, if you go far back, so I started my career from Aga Khan University. Okay. Bachelor's or PhD? No, I started working as a volunteer first. Okay. Then I started my collaboration of MPhil research work there. Okay. In the biological and biomedical sciences department. Okay. Then I joined there as a research associate. Okay. And, At Aga Khan? at the same Aga Khan University. And later on, I worked for some more time in Zawdin University. It was all, it's a step-by-step journey. So I also was a research lab in charge there. Okay. And then I got the faculty position in Zabist and currently in Salim Habib University. It's been a very long journey, right? It's a long journey, I think, yes. So, how did you end up in, like, for the bachelor's? Like, what make you pursue this? Like, bachelor's की बात करें अगर हम from the very beginning. From the very beginning, I think once in any student when he or she chose bio subject, so at that time there were only two fields. I mean, now probably there are many more, but I think at that time there were the student thinks only about the medical college and बिल्कुल. बस डॉक्टर ही हर चीज़ होती है, the MBBS doctor. And at that time डॉक्टर बनना एक बहुत वो एक होता है ना कि लाइक बस कुछ नहीं बनना तो डॉक्टर बनना, बस MBBS ही I करना. think not me, but few of my friends were like, बस डॉक्टर नहीं बनेंगे तो बस मर जाएंगे, कुछ नहीं और कुछ नहीं है लाइफ में. बस it's kind of the pressure probably from the family and probably there were no career counseling at that time. बिल्कुल. I must say, but now there are many good departments in many universities, especially in the private universities where they are seekingly and very in depth they are doing their job. And even in my university, Salim Habib University, there is some career placement department बिल्कुल. where they are placing the students. On the other hand, department itself are very much into it. Their students will place at some very specific and good positions. Right from because we send our students, I'm the program coordinator as well there. So I personally work on it, and we made a list of every student and where they will do their internship, especially the final year students. This is very good. मतलब मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में ऐसी चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती हैं बिकॉज यूनिवर्सिटीज़ डोंट गिव दैट मच अटेंशन टू दैट थिंग ना कि अब स्टूडेंट्स आ रहे हैं और अगर उन्हें किस उसमें जाना चाहिए, प्रॉपर मेंटोरशिप होना और प्रॉपर गाइडेंस होना, ये बहुत कम मिलता है यूनिवर्सिटीज़ में. I think this is something very important because at that phase जो turning point होता है ना, the passing out students and to opt for the masters or to go for the job, this is something very students remain in ambiguity. Where do they have to go? Either they have to, because of the financial pressures, they have to go for the jobs. They think like that, and many of the students are also doing job as well. Probably you are also doing that. I just came to know. But the thing is, what I suggest personally, that studies are more important because if you have probably your degree or something, I think the more into the skills along with the degree, that matters a lot because every student is different, and I think every student is learning the same thing,
but few of them will pursue that thing ना कि आगे करनी है कि Yeah. नहीं करनी है. will take it Back seriously. to that question कि like what made you feel कि मुझे इसी में जाना है. और मतलब चलें बैचलर्स तो चलें हो जाता है कि चलें बैचलर्स में आपने कैसे भी ले लेते हैं बिल्कुल एम्प्टी माइंड के साथ. बट आफ्टर दैट व्हाट मेड यू रियलाइज़ कि आगे मुझे एमफिल करना है और फिर मुझे इस रिसर्च की तरफ जाना है या फिर इस तरह की लाइक व्हाट समथिंग इंट्रीगिंग होता है ना कि लाइक दिस इज़ समथिंग इंटरेस्टिंग. और पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो बायोटेक्नोलॉजी और बायो साइंसेस का इतना ना अवेयरनेस है ना स्कोप है. व्हाट आई बिलीव लाइफ साइंसेस की जितनी भी फील्ड्स हैं बहुत सारी उनमें भी मतलब बहुत कम है जिसमें हमें बहुत चीज़ें देखने को मिलती हैं. तो एट दैट टाइम जब आपने एमफिल परसू किया था तो और अब के हवाले से आपको क्या लगता है कि कितनी अवेयरनेस है और क्या चीज़ें हैं जो पहले अट्रैक्ट नहीं करती थी या अब अट्रैक्ट कर. I think again, this is something very interesting question, I must say. And पहले awareness बहुत कम थी. ठीक है. If I compare with the current students, so they are very much aware of everything. Even they know that currently programming is very good, that if you have no degree, if you know any skill, any language of computer, you can just go to the any relevant company and they will get the job. They will probably they work at home somewhere, freelancing, and I mean they know each and every field very well. So पहले तो awareness नहीं होती थी. But if you are certainly asking about myself, so I was very inquisitive about learning. जहाँ पे भी workshop होती थी या कोई conference होती थी, I just indulge into it. I just have to go and attend it and learn something. Even 3 hours की जो workshop होती थी उसमें probably there would be some repetition and probably you feel that it is all what you have already studied and before. It also made you tired, like sitting there for the 3 hours. But so. but that effort, what I really want to mention here, really comes something forward. तो मतलब आप ये कह रही हैं कि मतलब ऐसी चीज़ों में पार्टिसिपेट करना एट बैचलर्स लेवल या इंटरमीडिएट लेवल अगर आप जाते हैं तो इट क्लियर्स योर माइंड ना. It clears your mind. और आपको very importantly probably अब YouTube में बहुत सारे tutorials आपको मिल जाएंगे घर बैठ के. But that social interaction, that the group discussions, that would still be missing at home. So I must say that this is very important to come out of your comfort zone. Just go to that academic location, social activities जिसमें आप interact कर पाएं और उससे फिर आपको point is that you also get the food items will be there, the more entertainment for the student to carry the bags. So that also facilitates students as well, that you have some diaries, brochures, etc. So what do you think after bachelor's what are the opportunities what you face at that time? मतलब आपने जब बैचलर्स कंप्लीट किया फॉर मास एमफिल आपने बीच में गैप लिया या फिर no, I didn't take any gap in between my studies. तो आपका यही था कि लाइक यू वांट टू कंटिन्यू और यू वांट टू परसू अ डिग्री एज वेल एज जॉब या कुछ ऐसा? No, I luckily there was no financial problem at home. So but some people are like that. It's not about financial constraints, but होता है ना कि like you want that professional exposure as well. आपको सिर्फ वो पढ़कर और वो एक उसमें मज़ा नहीं आ रहा होता. You want to do something or make a difference. मतलब एकेडमिक्स में इट्स गुड. आप रिसर्च लेवल पे अगर काम कर रहे हैं रिसर्च में या एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं परफॉर्म कर रहे हैं, बट वो एक एकेडमिक लाइफ एक अलग एक्सपोजर होता है. एक जो आपका प्रोफेशनल लाइफ का एक जो एक्सपोजर होता है एक प्रोफेशनल लेवल पे आप जब काम करते हैं तो देयर इज़ अ डिफरेंस. तो पीपल डू थिंक कि मेरी मास्टर्स या एमफिल के साथ साथ कोई ऐसी जॉब स्टार्ट हो कि लाइक यू विल हैव बोथ. That's very true. Professionally जो आप learn करते हैं, that's more practical approach, and the real life problems you started learning from there, जो आपको किताबों में या उस तरह से नहीं मिलती. Exactly. But at the same time I think that is why I think internships have become mandatory as per HEC. It is
incorporated into the curriculum now, that every student has to do the internship for some credit hours. And I think that is also the part of the curriculum, so that is why it is now onwards it is incorporated. But every student should do the internship first, from where they can get the experience. Other than that, theoretical knowledge is very important. Okay, there is not any shortcut. Okay, you enter into that and finally you start. For example, if you are doing any biotechnique practically and you don't know the theory of it, so I mean, there are many students who started working in the diagnostics lab, and probably they are learning. They would be technicians, kind of a thing. But the knowledge, what they retrieve from studying, from giving the exams, although at that time it looks very, pressurized, and but still, the theoretical knowledge never let you down, and I think it will always be applicable in every kind of practical approach. Right. But the thing what you also learn from your teachers, and some skills are inbuilt. I always say that there are some soft skills as well. There are some, hard skills. Everybody is like good at something. कुछ लोग professionally अगर soft skills हों, आपके interpersonal skills हों, तो उसमें भी बहुत आप कर लेते हैं. But इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास skills नहीं है to perform an experiment, और अगर आपके पास knowledge नहीं है तो आप अपनी उन बाकी skills की basis पे कुछ कर लें. But they are also important, क्योंकि यू आर डूइंग समथिंग, और अगर आपको डिफरेंस मेक करना है बातें करके नहीं हो सकता, आई गेस. तो आपको कुछ करके भी दिखाना होता है. राइट. सो आपको क्या लगता है, लाइक इन दिस परस्यूट ऑफ अचीविंग समथिंग, तो मतलब मेंटोरशिप कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है? लाइक क्या रोल प्ले कर रही है फॉर द स्टूडेंट्स और उनके करियर में? Again, this is very relevant to Salim Habib University. We have we have to conduct mentoring sessions, and every faculty is assigned to the group of students, and I personally have number of students to whom I'm giving their session. I listen their problems. It can be personal. It can be. At that time, when you were a student, what challenges you faced that time? Do you think? I think at that time there was the challenge of only first to take the admissions, to clear the entry test, then to get the maximum marks, because in my university there was some relevant grading system. Okay. Which is different. Bachelor's कहाँ से किया था आपने? Government College University, Lahore. Lahore? Yes. You're from Lahore? I had been studying there before, but then I shifted in my master's in collaboration with Afghan, and for some family reasons I shifted here. Yes. So it was a public sector university, so public sector has their number of students, and teachers are. You did your bachelor's in biotechnology, biochemistry, and then I did MPhil in biotechnology. Okay. So that was more precise. Biochemistry is more wider. Which year your MPhil? I did in 2013. 13. Yes. Yeah, nice. 2013 में biotechnology, like it was a new field at that time. Yeah. So everybody was just trying to get admission in that so field. What do you think at that time in AKU entered? अभी भी AKU का नाम सुन के everybody gets like AKU. No doubt. तो फिर the tag what you get it from there, and the experience and the learning thing, exposure, it's no match. Like outclass AKU. So what do you think कि क्या challenges थे तब MPhil को pursue करने के लिए? MPhil को pursue करने के लिए I think सबसे पहले तो to have the very good opportunities of research. So in Aga Khan, luckily I after the whole detailed interviews and the sessions, I got selected, and then they opted me for, they selected me. they selected me for the MPhil
research work. So I worked on basically genetics and different polymorphisms that were relevant to. तो आप शुरू से ही इस तरफ मॉलिक्यूलर की तरफ इंटरेस्टेड थी या फिर you wanted to pursue something else? I had some detailed discussion with my supervisors. Okay. So at that time. So that's when it was influenced by the supervisor or mentorship, right? Definitely. तो अभी आपको क्या लगता है what students are lacking right now? मतलब you are a teacher as well and आप program manager हैं, तो what do you see like कि students अगर they आपको पता होगा कि student do complain about things, आप जिस भी डिग्री में हो you don't like it कि यार ये मैं कहाँ आ गया हूँ तो but still what do you think कि इसमें कितना % जो है हमारा अपना students का कि लैक ऑफ इम्पोर्टेंस है या अवेयरनेस है, या फिर हमारी जो प्राइवेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं या हमारा जो पब्लिक डिपार्टमेंट्स हैं, हेल्थ केयर सिस्टम है, वो कहाँ लैक कर रहा है? मतलब व्हाट वी हैव राइट नाउ और हमें और क्या हमारे पास नहीं है जो होना चाहिए? ओके, पहले तो मैं ये मैसेज देना चाहूँगी जितने भी स्टूडेंट जो एडमिशन किसी भी फील्ड में ले रहे हैं, they should be very much satisfied or they should have the confidence कि वो जिस भी फील्ड में आगे हैं just pursue it with wholeheartedly. बिल्कुल. So अगर वो ऐसा नहीं कर रहे या पेरेंट्स की वजह से आ रहे हैं तो please don't take admission. या I mean parents must be thinking good for the students. I don't think so. ऐसा कोई रोल रहता है, मतलब at that time right now students मतलब they don't listen to them. they don't. But still I've seen the cases. मतलब अभी तक सब नहीं बट आई कैन से 5% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो स्टिल कहीं ना कहीं प्रॉब्ली दे आर कंफ्यूज, दे डोंट नो वेयर टू गो. अगर मेडिकल कॉलेज में नहीं हुआ, फार्मेसी में नहीं हुआ, तो दे आर थिंकिंग के चलो बायो साइंसेस में आ जाते हैं या बायो. बट डू यू थिंक देयर इज एन अवेयरनेस फॉर दिस? है कोई अवेयरनेस जब आते हैं पेरेंट्स? दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि जब ओरिएंटेशन होती है या कुछ इस तरह से एडमिशंस लेने के लिए, फॉर्म्स लेने के लिए आते हैं, तो स्टिल बायो साइंसेस के लिए भी थोड़े से कंफ्यूजन रहती है बिकॉज बायो माइक्रोबायोलॉजी लोग समझ आते हैं, बायोकेमिस्ट्री दे नो, बायोटेक्नोलॉजी दे नो, बट स्टिल दे आर कंफ्यूज्ड कि बायो साइंसेस क्या है. सो हाउ दिस इज गोना हेल्प आवर चाइल्ड, और क्या परस्यू करेंगे और क्या स्कोप है, जॉब मार्केट क्या है. Yes, so then we have different sessions with the parents when they come. Okay. But other than that, our marketing team also visits some different colleges, different intermediates and A levels. So it's just a spread of words. So teams are working and I think ultimately. Do you think पाकिस्तान में इस वक्त अगर लाइफ साइंसेस को देखा जाए, बायोटेक्नोलॉजी हो गई, बायो साइंसेस हो गई, तो इस पे काम है? मतलब डू यू थिंक कि ऐसा कोई हमने कोई ब्रेक थ्रू किया है पाकिस्तान में? बाहर तो हो रहा है, लाइक हम बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ को देखें, क्रिस्पर कैस9 को देखें और अदर जीन टेक्नोलॉजीज़ हैं. उसके अलावा अगर हम बहुत सारी और भी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो इंट्रोड्यूस हुई हुई हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में है हमारे पास, और बहुत सारे फील्ड्स हैं. लेकिन पाकिस्तान में आपको क्या लगता है, लाइक कोई ऐसा ब्रेक थ्रू जो हमने इससे किया हो? देखिए अगेन आई मस्ट से काम तो हो रहा है, ठीक है, ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, दैट इज़ अनदर क्वेश्चन. बट आई मस्ट से जिसके जितने रिसोर्सेज हैं उसके अकॉर्डिंगली द प्रोफेसर्स आर राइटिंग देयर asking for grants from a higher education. But if the private universities are there, they also तो have some separate funding. थिंक गवर्नमेंट का कोई रोल है? मतलब दे वांट, होता है ना, एक गवर्नमेंट आल्सो वांट टू इंडल्ज देयर सेल्फ इन सच थिंग्स ना, तो उनकी तरफ से कोई कंस्ट्रेंट या कोई चैलेंजेस जो यूनिवर्सिटीज़ को फेस करने पड़ते हों, या रिसर्च जो भी हो रही हैं अभी हमारे पास पाकिस्तान में, तो उनकी कमर्शलाइजेशन के लिए, मतलब हमारे अब हर साल कोई ना कोई बैच ग्रेजुएट हो रहा होता है और वो 2-2 साल एक साल तक FYP फाइनल और प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं, राइट?
तो वो सारी रिसर्च कुछ ऐसी किसी भी फील्ड में देख लें, हम मेडिकल में देख लें, MBBS में देख लें, लाइफ साइंसेस में देख लें, बायोटेक बायो साइंसेस में, या फार्मेसी में ही हम देख लें, तो बहुत सारी ऐसी रिसर्च होती हैं और वो थीसिस लेवल अगर थीसिस होता भी है तो उसके बाद दे डोंट पब्लिश इट, या फिर वो उसको कमर्शलाइज करने की उसमें कितनी एक पोटेंशियल होती है, तो वो क्यों नहीं होती आगे परसू। लाइक हमारा अपना डिपार्टमेंट कोई भी यूनिवर्सिटी है या कोई भी ऐसा इदारा है तो वो कहाँ लैग कर रहा है? व्हाट डू यू थिंक कि रिसर्च इस वक्त कहाँ स्टैंड करती है और क्या गवर्नमेंट का रोल होना जहाँ चाहिए? पे आती है इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, लैकिंग तो नहीं कह सकते, बट आई थिंक जो रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ में हो रही है और जो मार्केट में एक इंडस्ट्री की डिमांड है, वहाँ पे शायद इनके कम्युनिकेशन में थोड़ा सा गैप कह सकते हैं, बट स्टिल वी आर वर्किंग ऑन इट. Universities have started connection with the industries in the department of through the department of ORIC, which is research, innovation, commercialization. So they are connecting the industries with the universities research, so that we will come to know that what kind of research they want, what kind of product they want. बिल्कुल. So uske accordingly we will start doing our research. We will design our research. So this is something what was lacking, I must say, before probably, but now this thing has been upgraded, overcoming. Yes. Overcome. तो like what are the current needs like market में? अगर आप देखें बहुत सारी कंपनीज हैं जो बायो साइंसेस के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को फंड कर सकती हैं, प्राइवेट भी हो सकती हैं, पब्लिक भी हो सकती हैं. तो व्हाट डू यू थिंक कि अभी मार्केट जो भी है उसमें रिसर्च की लाइक किस तरह की रिसर्च की बहुत ज़्यादा डिमांड है? अगर व्हाट आई सी राइट नाउ हमारे पास एग्रीकल्चर पे बहुत काम हो रहा है, GMO ओरिएंटेड प्लांट्स रिसर्च जो भी है हमारे पास, क्रॉप्स की यील्ड के लिए, क्रॉप्स को इन्फेक्शंस से बचाने के लिए, या फिर हम जेनेटिकली मॉडिफाई करके क्रॉप्स की कुछ ना कुछ इन्हेंस कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ इन्हेंस कर रहे हैं, उस पर बहुत ज़्यादा काम है. BT कॉटन हमारे पास एक एग्जांपल है जो पाकिस्तान की है, वो बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हमने वो की हुई है. तो व्हाट डू यू थिंक कि लाइक और अभी राइट नाउ हमारा जो रिसर्च का फोकस है वो किस तरफ है? लाइक दे आर into commercializing those projects, या फिर अभी भी जैसे अभी रिसेंटली जो रिसर्च हमारा हुआ है, एग्जीबिशन हुआ है, तो देयर वर अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स देयर ना, बट मैंने जहाँ तक उसके बाद जो रिव्यूज़ देखे हैं लिंक्डइन पे, पीपल वर नॉट सेटिस्फाइड. दे वर सेइंग कि मार्केटिंग कर रहे हैं, ये है वो है फलाना. बट व्हाट एक होता है ना कि आप आगे बताएं कि व्हाट शुड बी कमर्शलाइज, व्हाट शुड यू डू. मतलब अब वहाँ पे मैंने बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स भी देखे हैं लाइक विच आर ऑलमोस्ट सिमिलर, ओके, बट दे आर स्टिल लाइक डूइंग इट. और फिर उसमें से भी मतलब सिमिलर प्रोजेक्ट्स में भी ऐसा कुछ नहीं. मतलब व्हाट आपको क्या लगता है कंपनीज या जो भी रिसर्च फंडिंग पोजीशन वो हैं, इदारे हैं हमारे पास पाकिस्तान में, या पब्लिक या प्राइवेट, व्हाट दे वांट एंड हमें क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, क्यों नहीं हमें फंडिंग्स मिल रही? अगर इतनी रिसर्च हो रही है पाकिस्तान में तो उसको कमर्शलाइज क्यों नहीं किया जा रहा? आई थिंक यू हैव आस्क्ड 2 क्वेश्चंस एट द सेम टाइम, बट पहले मैं आपके उस चीज़ को टच करूँगी जो आपने अभी बात की है एक्सपो में. आई थिंक यू आर रेफरिंग टू द HEC हायर एजुकेशन, सिंध हायर एजुकेशन रिसर्च जो एक्सपो हुआ है अभी, राइट, 3rd. इससे पहले आई हैव displayed my research projects before, but unfortunately this time I was not able to visit there. But I must say the thing what you just have talked के जो आपको रिव्यूज़ इतने अच्छे नहीं मिले, उसकी वजह आई थिंक probably it's a good point Sindh HEC का कि they have accepted all the abstracts to display. बिल्कुल. I think if I take it positive, so that is a good thing कि they have given a chance to each and every researcher who wants to display their research product or whatever their research is. But at the same time, the people who are taking out time and especially wanted to see some, especially the industrialists who want to pick up some projects or products for the commercialization, but ये कि उनके लिए probably थोड़ा सा ये हो जाता है कि
they are coming with more hopes. But at researcher point of view से देखें तो आई थिंक देयर इज़ मोर स्क्रूटनी जहाँ पे है ना, एक्सेप्टेंस, वहाँ पे शायद अगर थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस या एक पैनल एक बना दिया जाए जो इनमें से बहुत ही बेस्ट एब्स्ट्रैक्ट्स को अप्रूव करे, जो उसको डिस्प्ले किया जाए. और दूसरा क्या था आपका क्वेश्चन? लैकिंग कमर्शलाइजेशन क्यों नहीं मिलती? लैकिंग फिर इसीलिए नहीं मिलती ना बिकॉज ये आपके प्रोजेक्ट्स इतने अच्छे नहीं हैं कि इंडस्ट्री उसको आए और पिकअप कर ले. तो दैट्स व्हाट आई वाज आस्किंग कि मतलब अभी जो प्रोजेक्ट ट्रेंड है, रिसर्च में जो ट्रेंड है हमारा, तो वो क्या है? मतलब what they want, like technology की तरफ हम देखें, they want advancement in technology, yes. or they want to pursue a sustainable approaches, like right. तो अब आई केम टू द कोविड, वहाँ से जब सबको अवेयरनेस हुई थी, तो वैक्सीन जो एक है वो द वैक्सीन डेवलपमेंट, और अब आप बात करती हैं तो ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट इज़ वेरी you know more into the field जिसमें इन सिलिको स्टडी आप पहले करते हैं, देन यू आर फर्दर इसको आप क्लिनिकल ट्रायल्स पे लेके जाते हैं. बट this is one of the thing. Other than that, there are many other food industries हैं, उससे relevant आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं. पर अगर आप wet lab उसमें molecular में जाते हैं तो you are gene editing is very advanced. बिल्कुल. तो gene editing के through you can have some number of अगर आप एग्रीकल्चर साइड पे चले जाए या जो भी आपकी किसी भी फील्ड में जीन एडिटिंग प्लेज अ वाइटल रोल, और इस टेक्निक को आप अप्लाई कर सकते हैं. बट there are number of things. I can't still sorry to interrupt, मैं आपको कट कर रही हूँ बीच में, बट हमारे पास मतलब जीन एडिटिंग पे बहुत काम हो रहा है. पाकिस्तान से बाहर भी बहुत काम हो रहा है, पाकिस्तान में हो रहा है लेकिन इतना आई डोंट थिंक सो. एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज़्यादा हो रहा है. बट व्हाट आई सी के जीन एडिटिंग टूल्स जो हमारे पास हैं, Cas9 हो गया, और बहुत जो भी दूसरी कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, तो डू यू थिंक कि पाकिस्तान में इतना हमारे पास उसको प्रॉपर वेज में यूटिलाइज़ किया जाता है? बिकॉज दे आर एक्सपेंसिव एज वेल एज हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे, बैचलर लेवल पे खान हो गया या इस तरह के बड़े जो हाई प्रोफाइल इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पे अगर हम देखें तो ये चीज़ें हैं. बट people doing such degrees like life sciences में, टेक्नोलॉजी में, इन सारे तो बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं है. कराची यूनिवर्सिटी में है, वहाँ पे अलग अलग रिसर्च डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं एंड पीपल आर परसुइंग. लेकिन बहुत सारी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र कर रही हैं ऐसी डिग्री, और वो एक प्रॉपर आप 4 साल की डिग्री पढ़ा रहे हैं ना आप उसे, और वहाँ पे आप थेरेटिकली पढ़ा रहे हैं, लेकिन यू आर नॉट गिविंग दैम आज का जो एडवांस कटिंग एज टेक्नोलॉजी जिस पे काम हो रहा है, वो एक्सपोजर प्रोवाइड नहीं कर रहे. तो डोंट यू थिंक सो कि हम वही पुराना एक पढ़ रहे हैं जो अभी कटिंग एज टेक्नोलॉजी के हिसाब से, जब वही स्टूडेंट ग्रेजुएट हो गया या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद प्रोफेशनल लाइफ में जा रहा है, ही और शी डजंट नो हाउ टू यूज़ दैट टेक्नोलॉजी, वो हमारे करिकुलम में इंक्लूड नहीं होना चाहिए? देखिए, यूनिवर्सिटीज़ में जितने भी प्रोफेसर्स हैं या वो अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी एक्सपर्टीज़ के अकॉर्डिंगली दे आर वर्किंग ऑन इट. सो उसके अकॉर्डिंगली आई मस्ट से कि हर कोई काम कर रहा है. बिल्कुल. अंडर ग्रेड पे अगर आप देखें तो उसमें हमारे थोड़े स्मॉल प्रोजेक्ट्स होते हैं. उसकी रीज़न ये होती है आई ऑलवेज फोकस के टाइम पे ख़त्म हो जाए और कोई ऐसी छोटी सी भी टेक्निक हो जो उनका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के साथ वो लर्न करें. ठीक है. क्योंकि एट द इट्स अ वेरी इनिशियल लेवल ऑफ रिसर्च एट द BS लेवल. सो दे हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल जो उनकी लर्निंग इसमें होती है वो लिटरेचर सर्च है. हमारे स्टूडेंट्स जो होते हैं दे आर मोर इनटू कि हम बस बेंच पे खड़े हो जाएं, हमारे हाथ में चीज़ें आ जाएं, बस हम कुछ करना शुरू कर दें. बट दे आर स्किपिंग द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि लिटरेचर के बगैर यू कैन नॉट स्टार्ट इवन अ सिंगल स्मॉल प्रोजेक्ट. बिल्कुल. सो उसके लिए एक तो लिटरेचर पढ़ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आपको एक स्किल भी आ जाए तो आई थिंक एट BS लेवल इज़ good enough, because in 1 year, in 2 semesters, you have to write the thesis writing as well, and you have to present it as well in the your final defense.
और आई थिंक काम तो हो रहा है, एंड आई थिंक स्टूडेंट्स थोड़ा सा ये कि फोकस ऑन सम गुड जर्नल्स from where they can opt different ideas along with the बट स्टिल इंटरनेशनल जर्नल आर वेरी एक्सपेंसिव पब्लिकेशंस के हवाले से अगर देखा जाए। अब वो तो अलग बात है, अगर आपके पास मेंटोरशिप है, आपके पास सुपरवाइज़र है, उनके पब्लिकेशंस हैं एंड दे कैन लाइक डू इट फॉर यू, वो एक एक अलग चीज़ है। लेकिन इंडिविजुअली एट इनिशियल लेवल पीपल फाइंड इट वेरी डिफ़िकल्ट इंटरनेशनली किसी जर्नल में पब्लिश करवाना। और हमारे पास आई डोंट थिंक सो कि पब्लिकेशंस की भी इतनी हमें, डोंट यू थिंक सो इसके ऊपर भी एक कोई करिकुलम में हमें ऐड करना चाहिए? क्योंकि हम हर चीज़ जो बढ़ा रहे हैं, ठीक है थेरेटिकल होना चाहिए, आप थेरेटिकल नॉलेज चीज़ों की होनी चाहिए, बट आपको उसको कमर्शलाइज कैसे करना है आगे जाके। अब अपने जो भी आप आगे रिसर्च कर रहे हैं वो ये चीज़ें इंक्लूडेड होनी चाहिए हमारे पास। बिल्कुल, आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी हाईलाइटेड, बिकॉज पब्लिकेशन जो है दैट इज़ अ प्रूफ ऑफ योर रिसर्च। बिल्कुल जो थीसिस है वो एक शेल्फ पे पड़ा रहता है, या बिल्कुल हार्डली कभी आप उसको खोल के पढ़ते होंगे। मोस्टली आई थिंक अगर पब्लिश कर दिया है, एंड इट विल बी, एक तो जैसे कहते हैं ना कि इट विल बी अ फर्दर स्टेप फॉरवर्ड फॉर द अदर रिसर्चर्स एज वेल, जहाँ से वो पिकअप from where they can pick up your information and start working on the later prospects. But publishing is very important, but जहाँ पे आपका सवाल है कि it is many of the journals are highly, they require the overpriced, yeah, yeah. overpriced, but at the same time you have the other track. There are some, like, it's your Good choice to, local are you journal as well. no, there international journal, if you talk about Elsevier, Okay. if you talk about Springer, so there are two tracks from where you opt for the open access, or where you just publish your abstract. So I think if you go for to the other track, that is also fine. And the only lacking is कि citation इतनी नहीं होती है, because people will be no access for the full the full text या PDF file आपको नहीं मिलती उसमें से. But ये कि still you can publish it. But and again this is highly in thousands dollars and euros बिल्कुल में इसकी price होती है. But Pakistani journals are also very good. I mean, Pakistani Journal of Botany is one of them, if you are doing some relevant research work, and many more, I think. ओके तो अभी हमारे पास पाकिस्तान में राइट नाउ व्हाट इज़ द सिचुएशन लाइक फॉर द लाइफ साइंसेज स्टूडेंट्स, अगर वो बैचलर लेवल पे आते हैं, व्हाट डू यू सी? मतलब आप एक उसमें काम कर रही हैं एंड आपको पता होगा लाइक आपने खुद भी जॉब्स वगैरह की हुई हैं, तो व्हाट डू यू सी बैचलर लेवल पे हमारे पास इस वक्त क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं फॉर द बायोटेक एंड बायो साइंसेस स्टूडेंट्स? बैचलर्स लेवल पे तो आई थिंक किसी भी फील्ड में बहुत कम जॉब्स होती हैं. ठीक है, अगर होगी भी तो इट विल बी जस्ट लाइक काइंड ऑफ ट्रेनिंग, जिसके लिए आपको स्ट्रगल बहुत करनी पड़ती है. Don't you, एंड sorry to interrupting again, don't you think ये ट्रेनिंग हमें उन 4 सालों में ही मिलनी चाहिए जो जब हम ये एक डिग्री परफॉर्म कर रहे हैं, परसू कर रहे हैं, आफ्टर स्पेंडिंग लाइक आफ्टर डूइंग योर बैचलर्स, आप एक प्रोफेशनल उसमें जा रहे हैं, ठीक है आप इंटर्नशिप्स करें 6 मंथ्स की, दीज आर गुड, बट वो भी हमें पेड नहीं मिलती हैं वो भी पेड नहीं मिलते हैं. internships, I think if you're lucky, if you're getting some amount in your internship. बिल्कुल. But So why I why think things are bachelor like is that? bachelor, you are not master at that level as per Yeah. the curriculum. If you have studied it, right, you are in the final year, so I think first 2 years में they we, as per HEC जो curriculum है उसके accordingly we focus on the foundation courses, जिसमें आप प्रॉब्ली आपकी नहीं, बट देयर आर मैनी स्टूडेंट्स जिनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होती प्रॉब्ली, तो इंग्लिश इज़ अ बेसिक इंटरनेशनल लैंग्वेज, सो एवरीबडी शुड हैव कमांड ऑन इट. सो फंक्शनल इंग्लिश एंड देन communication, writing skills. So these are some very Islamia, Pakistan studies, maths, if you're coming from bio background, if you're coming from maths background, then biology is the subject. So some deficiency courses कह लें या foundation courses कह लें. So you chemistry है,
then in the second year, third year, you have building up your, you have started learning कि biosciences में होता क्या है, the होता very क्या है, basic things, and बेसिक्स. gradually in the final year, I think what I have seen कि जो When you opt students for will, some electives के अब इसमें जाना है, this is the something I think final year projects से पहले तक they are I think good enough to decide कि वो किस फील्ड में उनका इंटरेस्ट है. बट उससे पहले आई डोंट थिंक सो कि दे कैन बी super good enough to be master and to hands on in anything. उसके लिए master I think is the minimum degree before I think PhD, MS/MPhil, whatever you want to say. Um, बट आई थिंक PhD इज़ मोर गुड अगर आप कर लेते हैं, बट प्रॉब्ली हर एक का इतना टेम्परामेंट नहीं होता. प्रॉब्ली दे आर मोर इनटू अर्निंग द मनी. सो हाउ कैन स्टूडेंट्स, मतलब जो भी हमारी रिसर्च हो रही हैं अभी बैचलर लेवल पे, उनको कमर्शलाइज करने के लिए, लाइक व्हाट डू यू थिंक कि क्या चैलेंजेस हैं अभी, और अभी किस तरह स्टूडेंट्स उसको प्रॉपरली एक कमर्शियल लेवल पे ले जा सकते हैं? देखिए सबसे जो बेस्ट वे, एक तो अभी आपने नाम लिया था एग्जीबिशंस जो होती हैं, वहाँ पे एवरी स्टूडेंट शुड डिस्प्ले देयर रिसर्च व्हाट they do in their BS or MS. In other case, there are many poster display sessions. They are offering by many renowned universities. अगर आप आगा खान के नाम लेते हैं एज अ स्टैंडर्ड, तो आगा खान में there are number of conferences and from where you get the chance to display your research. एंड फ्रॉम देयर ऑन, जैसे मैंने अभी बात की ना कि जहाँ पे भी रिसर्च कॉन्फ्रेंस होती थी तो मैं चली जाती थी. तो चली जाने का मतलब ये है कि आई ऑलवेज गो देयर एंड प्रेजेंट माय डेटा एंड प्रेजेंट माय रिसर्च एंड गिव द ओरल टॉक्स, if you are selected, give the poster. So these are the platforms from where you have to get in touch and apply there. So these are very important at the BS level. एंड व्हाट आर द कंपनीज, लाइक कंपनीज या ऐसी जो रिसर्च फंडिंग में इन्वेस्ट करती हैं, कैन यू नेम सम ऑफ देम, लाइक ऐसी कोलैबोरेशन के साथ हम कर सकते हैं एड मास्टर्स और बैचलर लेवल, जो स्टूडेंट खुद से अगर अपने किसी उससे करना चाहें? आई नो अबाउट Aga Khan Federal Urdu and Karachi University, you can collab for your research work as well. But what are those companies और जो research funding में बहुत invested हैं? Can you name some? देखिए फंडिंग स्टूडेंट को तो नहीं मिलती. Exactly, research projects को मिलती है. सुपरवाइजर्स की बात करते हैं तो देयर आर वी हैव नंबर ऑफ कोलैबोरेशंस विद जिनके साथ हमारा MOU साइन हुआ है. इसमें कराची यूनिवर्सिटी है, ICCBS, हेलो फाइट्स डिपार्टमेंट है. अदर देन दैट इंडस हॉस्पिटल है जिसका सलीम हबीब यूनिवर्सिटी से हुआ है. तो इट डिपेंड्स ऑब्वियसली आपकी यूनिवर्सिटी का भी किसी के साथ हुआ होगा MOU. सो वहाँ पे यू नीड योर प्रोफेसर जिसके अंडर भी आप वो अपना प्रोजेक्ट कर रही हैं. तो इफ़ देयर इज़ अ नीड ऑफ एनी ऑब्जेक्टिव, फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी एग्जांपल दूँ तो वन ऑफ माय स्टूडेंट डिड वन ऑफ माय रिसर्च ऑब्जेक्टिव इन दी Helophytes department. Okay. Karachi Helophyte plants? Yes. Okay. So and the people are very welcoming, especially the science field. We have a very small community, and if we talk to each other, I think this is the thing what is lacking. Our social interaction is very important. We have the contacts, but how to utilize them in a good way, in a productive way, so that is important. So the people are welcoming. I think you can do in collaboration, and I think number, but you just need what to about go through some those official pharma industries, pharma companies or biotech companies? Do they invest in such projects or do they get a big, मतलब अभी भी इतने इंडस्ट्रीज एक्सपो में आई होंगी, तो डू यू थिंक कि वही वाली बात है, अप टू द मार्क अगर रिसर्च नहीं होगी, they will never invest in something ना, they will be disappointed. बट स्टिल बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो फंडिंग की लैक की वजह से बंद हो जाते हैं. तो बिल्कुल, क्योंकि लिमिटेशन इज़ ऑलवेज देयर. सो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और उसके अकॉर्डिंगली हमें अपना काम करना होता है.
रिसेंटली अभी मेरा विजिट हुआ था यूके में MLDBI. I attended the training there. Then I had some interaction with various other professors in Durham University and so on. So again, if we compare ourselves to the at the international level, तो फिर तो आप कुछ नहीं कर सकते. You just go into the probably better Okay, to just think that whatever we have, just do more productive things within the limited resources and do some good. Plan some your good research. Okay, so summing up all this, I just wanted to know कि like अभी जो हम research हमारी overall जो मैं बात कर रही हूँ, हम PhD MPhil लेवल पे भी देखें या फिर विदाउट एकेडमिक लेवल हमारे पास पाकिस्तान में जो भी रिसर्च हो रही हैं, तो डू वी आर गेटिंग समथिंग आउट ऑफ इट. मतलब इतनी रिसर्च ग्रांट्स जो भी हमें मिलती हैं पाकिस्तान के लिए या किसी भी प्रोजेक्ट को पाकिस्तान के, तो कोई कटिंग एज टेक्नोलॉजी जो पाकिस्तान ने अभी इंट्रोड्यूस करवाई हो इन द फील्ड ऑफ साइंस और बायो साइंसेस? इंट्रोड्यूस तो मैं प्रॉब्ली इट्स नॉट इन माय नॉलेज, बट लेकिन कि जो एडवांस टेक्नोलॉजी सीक्वेंसिंग है हमारे यहाँ पे आगा खान में है, ICCBS में है. बिल्कुल. रिसेंटली आई विजिटेड डाउ कॉलेज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, वहाँ पे भी है. सो एडवांस टेक्निक्स तो हैं हमारे पास, एंड आई थिंक काम भी हो रहा है. But if you talk about BS level, the BS level, I'm generally talking about yes, we have the because हमारे पास ऐसे रिसर्च सेंटर्स भी हैं ना, मतलब ऐसे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स भी हैं जहाँ पे रिसर्च हो रही हैं, जो कि लाइक इट्स नॉट अबाउट कि किसी का फाइनल प्रोजेक्ट है तो उसकी हो रही है, मतलब अदर हमारे पास बिल्कुल होती हैं. तो आई एम टॉकिंग अबाउट डैम कि मतलब आपको क्या लगता है कि लाइक कितनी हाई इम्पैक्ट है हमारी उन रिसर्च का, और आगे हम अगर BS या BS नहीं, अगर हम यूनिवर्सिटी लेवल के बाद अगर देखा जाए मास्टर्स लेवल के बाद, तो उसमें अपॉर्चुनिटीज़ कितनी, कौन से इंस्टीट्यूट हैं. जैसे अब हमारे पास डॉक्टर AK अब्दुल कदीर खान लेबॉर्ट्री जो है, तो वहाँ वो भी एक बहुत अच्छा रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे भी रिसर्च होती हैं. तो डू यू थिंक कि मतलब वहाँ पे ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लोग काम कर रहे हैं, दे आर मेकिंग डिफरेंस? मतलब रिसर्च का इम्पैक्ट क्या है इस वक्त पाकिस्तान में? अब बहुत सारी होती हैं ना चीज़ें कि भाई बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आ गया है और फिर उसको उससे बहुत सारे मसले भी पाकिस्तान के हल हो सकते हैं, बट वो फिर एकदम से गायब हो जाता है. ऐसा क्यों होता है? गायब तो नहीं हो जाता, आई थिंक या काम नहीं हो रहा उस पर. पीपल आर कॉन्टिन्यूसली स्ट्रगलिंग फॉर इन रिसर्च फील्ड. बट अभी जो हमारा करंट जो ट्रेंड है जिसको हमें नीचे लेके आना है, दैट इज़ इकोनॉमी, उस ग्राफ को. तो आई थिंक बायोटेक्नोलॉजी जब इवॉल्व हुई थी तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि हमने इकोनॉमी जो है उसको बेहतर बनाना है. तो हमें बहुत कम पैसों में हमें बहुत अच्छा सा प्रोडक्ट करना है. जितनी अभी तक बहुत सारी चीज़ें हम इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है. तो फॉर एग्जांपल अगर हम सिट्रिक एसिड प्रोडक्शन की एग्जांपल लें, तो आई थिंक आई वाज वेरी ग्लैड टू सी रिसेंटली इन डाउ कॉलेज कि वहाँ पे उनका एक फर्मेंटर आया है विच इज़ वेरी लैब स्केल में नहीं है, इट्स सम अपग्रेडेड, जिसमें आई थिंक नंबर ऑफ लीटर्स दे कैन यूज़ इन इट. सो आई थिंक ऐसा प्रोडक्ट जो आप हाई स्केल पे बना सकें एंड देन यू कैन कनेक्ट विद द इंडस्ट्री. तो हमारी बहुत सारी अमाउंट जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उस चीज़ को हम ख़त्म कर सकते हैं. तो हमें आजकल का जो ट्रेंड है दैट इज़ मोर इनटू एप्लीकेबल रिसर्च. व्हाट डू यू थिंक कि अभी हमारे पास ऐसा क्या चीज़ है जो पाकिस्तान में हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं और वो एक इग्नोरेंस पे है या एक वेस्ट है जो हम यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हैं? व्हाट डू यू थिंक अभी करंटली ऐसी कौन सी चीज़ है जिस पे हम फोकस करके अपनी ही रिसर्च फील्ड में या पाकिस्तान की इकॉनमी में इम्पेक्ट कर सकते हैं? आपका जितना भी वेस्ट है, दैट फ्रॉम वेयर यू कैन मेक अप योर फ्यूल, यू कैन दैट इज़ कम बायोफ्यूल के नाम से है. एंड जो आप कुकिंग का वेस्ट ले लें उसके थ्रू आप कर सकते हैं. जितना आप यूज्ड ऑयल गार्बेज है उसकी सॉइल के नीचे से आप कुछ बैक्टीरिया ऐसे आइसोलेट कर सकते हैं, जिसको आप फर्दर ग्रो करके फर्मेंटेशन करवा सकते हैं. फर्मेंटेशन आई होप हाँ, तो
And और उसकी if भी you talk about fermentation marine biology, वहाँ पे अब there are number of samples, you know, microalgae is very famous. आप वहाँ से पिकनिक भी करें, वहाँ से आप अपने samples भी लेकर आएं. I mean they are very you know, depends करता है कि आप कौन सा source लेना चाहते हैं, किस field में आपका interest है. और And what do you think कि if someone is pursuing bachelor's या MS और MPhil, तो what do you think कि biotech is more feasible या फिर biosciences, like give it a short comparison how biosciences is and how biotechnology is. और अभी फ़िलहाल आगे हमारे पास research में in coming ages तो yes, biosciences is a little broader. जिसमें कहते हैं ना, it's a springboard from where you can jump into any field. yeah. और जो बायोटेक्नोलॉजी है, it is more specified, more precise, जो कि you know आपको पता है, बस you are more into बायो प्रोसेसिंग और बायो टेक्निक्स में, इस तरह से आप उसमें जाते हैं. बायो साइंसेस में यू टेक एवरी फ्लेवर, यू नो. आप बायोटेक्नोलॉजी भी पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि उसमें उसका एस्पेक्ट नहीं है, बट माइक्रो भी है, उसमें बायोकेमिस्ट्री भी है. बायोटेक्नोलॉजी में इट्स मोर अप्लाइड. उसकी फर्दर डोमेन्स है, मॉलिकुलर बायोटेक्नोलॉजी है, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी है, एंड फाइनली इन योर फाइनल ईयर थीसिस या एमफिल में है तो जो आप रिसर्च प्रोजेक्ट उसको चूज़ करेंगे जो आपका इंटरेस्ट होगा. सो ऑन द बेसिस ऑफ योर रिसर्च प्रोजेक्ट बेसिकली यू आर सपोज टू यू नो बिकम फैमिलियर कि आपकी डोमेन क्या है. So I think it's because if you talk about my PhD research, so mine was of molecular biotechnology. Okay, क्या प्रोजेक्ट था आपका? It was all about the I studied different mutations. Okay, genetic mutations. Genetic mutation. Then I worked on some proteins. Okay, you did your PhD from? I did in collaboration with Al Khan. Okay. And my parent, the university was GCU. GCU Lahore. Okay. You did your the private and public. Okay, nice. That's something good. So आपको कराची में इस तरह की कोलैबोरेशंस का क्या सीन है, मतलब डू यू थिंक होती हैं और क्या? बिल्कुल होती हैं. करंटली सलीम हबीब यूनिवर्सिटी में काम कर रही हूँ, सो वी हैव नंबर ऑफ कोलैबोरेशन. हमारे अपने स्टूडेंट्स क्लासेस के बाद दे आर रनिंग टुवर्ड्स देयर कंप्लीशन ऑफ देयर प्रोजेक्ट्स, जिसका अगर किसी ने बाहर करना है या सम टाइम ऑफ डे लेकर दे कैन कंप्लीट देयर प्रोजेक्ट इन सम अदर यूनिवर्सिटी. सो यस, कोलैबोरेशंस आर एवरीवेयर. एंड बायो साइंसेस के लोग तो वैसे ही बहुत वेलकमिंग होते हैं, एंड दे यू नो दे वांट टू हेल्प ईच अदर. हमारा पैसा कमाना पर्पस नहीं होता. वी आर मोर इनटू हेल्पिंग ईच अदर. प्रॉब्ली और फील्ड्स के लोग भी ऐसे ही होते होंगे, बट ठीक है, बिकॉज हमारा कंसर्न ज़्यादा बायो साइंसेस के साथ ज़्यादा इंट्रैक्शन होता है. तो यस, तो कोलैबोरेशन हो जाती है आराम से, प्रोवाइडेड दे हैव द रिसोर्सेज. Okay, it was very nice talking to you. Same and here. It is like अभी अगर हम इस पे और भी बात करने बैठे हैं तो आई गेस हमारी बातें नहीं ख़त्म होंगी. एंड इट वाज अ रियली नाइस डिस्कशन और बहुत अच्छा लगा. लाइक मुझे तो पर्सनली एज अ स्टूडेंट भी अगर मैं इस चीज़ को देखूँ तो एक होता है ना, बहुत सी चीज़ों पे आपका वो हो जाता है, क्लियर हो जाती हैं. बट इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू एंड वी विल end this conversation here. Okay. And I would like to invite you another time as well कि हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करें. For sure. और कोई ऐसा टॉपिक जो हमारे लिए रिसर्च में या आगे बायो साइंसेस में कोई ब्रेक थ्रू पैदा कर सके और हम कंट्री को कंट्रीब्यूट कर सकें, किसी चीज़ की ज़रा इकॉनमी को कंट्रीब्यूट कर सकें. सो yeah, thank you so much for coming. I must say कि आपका जो I mean the motto behind your channel is very important for the young generation, and I think these words probably अगर 1% student को भी I think अगर touch कर लेता है, and if they are sure about their profession, the biosciences profession के accordingly, if they have become clear about it, so I think it will be a great success. And best of luck for everyone. Thank you so much.